Hello everyone. There is a common saying that first impression makes the last impression. But what does makes the first impression? Does your good looks fix it? Although it is commonly believed, but it is not true. Your overall personality contributes to it, which includes your way of communicating your thoughts in an effective way, your way of dressing, your presence of mind, and above all, your inner beauty that reflects from your face makes the first impression. So, today we will get to learn about how to become an influential personality from the renowned personality transformation coach, Lieutenant Dr. Rita Gangwani. Dr. Rita has got world record recognition for her contribution in this field. She has mentored many beauty pageants for kids, girls, women, men, and even transgenders and differently able contestants. So let's start the session and welcome to our guest. Will we talk, Dr. Rita? Thank you so much. Thank you for the invite and good evening, everyone. It's an honor to have you on our show, ma'am. Thank you. Thank you. Ma'am, before starting the session, we would like to know about your journey and your learnings of life, because I've got to know through some talk that you have also had faced challenges of like rejection due to short height and also the average looks. So please tell us about your journey and your learnings of life. Absolutely. First of all, I'll take you back to my childhood. When I was a little girl, say in class 4th, I was just 4 feet 5 inches. And by the time I I got into puberty, I realized everybody had grown taller. और मैं उतनी की उतनी. To always blame my parents, fight with them, but वो बेचारे भी क्या करते? Stretch कर के परेशान, but I remained 4 feet 10 inches. Right. And I always wanted to get into the glamour world. I wanted to be Miss India, I wanted to be a model, I wanted to be an actress. But everywhere I went, I was very badly rejected. Everybody used to laugh at me, and they used to treat me like like I can't even tell you, like some kida makoda. I was not existing in that world. So I had given up on life, and there was a time when I actually thought that I will end my life. There's no point living this kind of a life of feeling rejected, unwanted, unloved. And I had actually locked myself in my own personal prison. I stopped meeting people. I stopped socializing. So, one of my teachers, she came to see me, and when she saw the condition I was in, उन्होंने एक example दिया मुझे. She says, "Beta, if a 100-rupee note, नया नवेला, if I crush it, what value it will get?" I said 100 rupees. Then she, made it dirty. कितना पैसा मिलेगा? I said 100 rupees. She says, इसको crush किया, dirty किया, but इसकी value तो कम नहीं हुई ना. Similarly, society will break you. That will make you feel unwanted, unloved. Will make you feel dirty. But does that mean you don't have a value? She says you have a value, but you will only find your value by one means, and that is first learn to love yourself. The day you start accepting and loving yourself, people will automatically start accepting you. Because you don't love yourself, nobody loves you. She says, the moment you get up in the morning, you stand in front of the mirror and you keep saying, काश मैं लंबी होती, काश मेरे दांत ऐसे होते, काश मेरे बाल ऐसे होते. Who's the first one who's listening? It is you, your brain, your body, your soul. So सुबह सुबह अपने को गाली दोगे तो क्या खाक तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा? So she said, first thing, sit down with the paper and pen, make a list. What goods you have and what is the bad thing you have. So make a list, अच्छाई और बुराई. And when I made a list, I realized good तो इतने सारे और बुराइयों में सिर्फ 4-5 चीजें थी. She says, see, you have so much of good. Why are you focusing only on the bad? And she made me realize that my height was a very small part of my personality. I had much bigger things in life. So I changed my focus to the bigger things. And those bigger things became so big तो उन्होंने मेरे हाइट को ओवरशैडो कर दिया. और अब कोई मुझे बोलता है यू आर शॉर्ट, तो मैं उसे ये बोलती हूँ कि आई एम नॉट शॉर्ट,
I'm as much under the ground as I'm above it, so I'm much taller than you. So yes, so it is basically a mind game. मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. Whatever you think will be your own reality. If you think you're the best, you're the best. If you think you're worthless, you're worthless. It's all in your mind. Yeah, what we think we become. Absolutely. True. Ma'am, we have got questions from many viewers. Like we have got first question from a student. He said that I am a low self-esteem boy but keen to make career in modeling. So please suggest how to communicate with confidence and in effective way. Okay. So first of all, बच्चे को मैं बोलना चाहूंगी. First thing, he has to find out the reason why he has low self-esteem. क्या वजह है कि लोग उसको सेल्फ एस्टीम में प्रॉब्लम है. जब एक हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वो बहुत नॉटी होता है, तो उसके पैरों को एक मोटी सी जंजीर से बांध देते हैं ताकि वो भागे नहीं. और वो भागने की कोशिश करता है, उसको दर्द होता है, तो एक टाइम आता है वो छोड़ देता है. ही स्टॉप्स कि मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं तो छुड़ा नहीं सकता खुद को. और जब वो हाथी बड़ा हो जाता है तो उसको रस्सी से बांध देते हैं. लेकिन क्यों? उसके मन में ये कंडीशनिंग हुई हुई है कि मैं बंधा हूं, मैं छुड़वा नहीं सकता. तो जब कई बार हम छोटे होते हैं ना, तो कई बार तू कर नहीं सकता, तेरे में वो चीज नहीं है, यू आर वर्थलेस, यू आर दिस, यू आर दैट, ये जो शब्द है ना, ये एक चेन की तरह हमें बांध देते हैं और उसकी वजह से हम लो फील करने लगते हैं. वी फील वी आर वर्थलेस, वी हैव लो सेल्फ एस्टीम. तो इस बच्चे से मैं कहूंगी कि पहली चीज व्हाट ही हैज टू डू, ही हैज टू फर्स्ट फाइंड आउट क्यों ही इज फीलिंग लो. क्या लोगों के कहने से? अगर लोगों के कहने से कर रहे हैं देन ही शुड रियलाइज कि वो बातें पुरानी थी जब किसी ने कहा था. अब उस चेन को तोड़ के आगे बढ़ना है. सो फर्स्ट थिंग ही हैज टू काउंटरएक्ट दैट those words जिसकी वजह से उनका low self esteem है या किसी और वजह से है. he can share with me, I can help him out with that. Secondly, if he is getting into modeling, he must find out what kind of modeling he wants to do. अगर low self esteem है, लोगों को face नहीं कर पा रहा है, तो he can simply start with print modeling, जहाँ पे लोगों को देखना नहीं पड़ेगा, लोगों से मिलना नहीं पड़ेगा. धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा के देन ही कैन फाइनली गो फॉर अ रनवे मॉडलिंग. तो एक एक करके स्टेप लेगा तो धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंस आएगा. तीसरी चीज, स्टार्ट स्मॉल, छोटे से शुरू करो और फिर धीरे धीरे बड़ा करो ताकि एक एक कदम करते करते आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए. और जहां तक इन्होंने बात की है कि कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन के लिए हमेशा याद रखें, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि मॉडलिंग में जाने के लिए मुझे इंग्लिश आनी चाहिए. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. आप इंग्लिश, हिंदी, किसी भी भाषा में बात करें, लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम. लैंग्वेज सिर्फ एक मीडियम है अपने दिल की बात आगे रखने का. आप कैसे अपनी बात आगे रखते हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स. लैंग्वेज डज नॉट मैटर. सो अगर आप दिल की बात अच्छे से खुल के आगे रख पाएंगे तो आपको ये लैंग्वेज और इस कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आएगी नहीं. घर में भी तो बात करते हो ना, सबसे, दोस्तों से भी बात करते हो ना. बस वही चीज आपने औरों से करनी है, बिना झिझक के बात करनी सीखनी है. लेकिन पहले जड़ को ढूंढना है कि ये जो लो एस्टीम आई है वो क्यों आई और कहाँ से आई. तो जड़ को खत्म करोगे तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे. Ma'am, it is normally perceived that some people, those who are from the small town, they have the problem in their diction just because they don't get the environment. So how they can work on that? We have got a query for that also. Okay, so diction क्या होता है? Diction का मतलब होता है कि आपके वर्ड्स क्लियरली नहीं आ रहे हैं समझ में. कहीं ना कहीं फंबल हो रहे हैं. और उसकी बहुत सी वजहें हो सकती हैं. कई बार हमारी टंग टाइट होती है, कई बार हमारे जॉ की मसल्स टाइट होती है, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो क्लियरली नहीं सुनाई देते. तो डिक्शन को इम्प्रूव करने के लिए अगर आप घर बैठ के करना चाहते हैं, पहली चीज आपको ट्राई करनी चाहिए टंग ट्विस्टर्स. हम छोटे थे तो अब हमें नहीं पता था कि टंग ट्विस्टर क्या होती है. स्कूल में लड़कियां बोलती थी ना, तो 10 बार बोल के बता सकती है, चच्चू की चाची ने चच्चू की चाची को चांदनी चौक में मारनी. तो वो क्या था? वो टंग ट्विस्टर था. ऐसे बहुत से टंग ट्विस्टर्स हैं, रेड लेदर, येलो लेदर, या आप मम्मी मेड मी मैश माय NMMs, ऐसे करके बहुत से
टंग ट्विस्टर होते हैं। तो टंग ट्विस्टर क्या करते हैं, टंग ट्विस्टर आपकी पूरी टंग को अच्छी से एक्सरसाइज देते हैं। तो अगर आपकी टंग कहीं से टाइट है तो वो खुलनी शुरू हो जाती है। दूसरा, अगर आप अपनी डिक्शन को बेटर करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेशनल फोनेटिक्स समझने पड़ेंगे। अगर आप गूगल पे जाके टाइप करेंगे इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स, तो आपको हर अल्फाबेट का इंटरनेशनल साउंड मिलेगा, और वो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसको अगर आप अपनी वोकैबुलरी में यूज करेंगे तो आपके आवाज इंटरनेशनल फोनेटिक साउंड के हिसाब से साफ सुनाई देंगे। तीसरी चीज, शब्दों को तोड़िए। यू नो, सपोज आपको बोलना है कि आई आस्क्ड हर समथिंग, तो आस्क्ड ऐसे सुनाई देता है, आई आस्क्ड हर समथिंग ऐसे सुनाई देता है। तो शब्दों को तोड़िए, आई आस्क्ड हर समथिंग। शब्दों को तोड़ के बोलना सीखिए, तो फिर धीरे धीरे वो जुड़ते चले जाएंगे। और जोर से पढ़ें। जोर से पढ़ने के साथ साथ एक एक्सरसाइज मैं आपको और बताती हूँ। ये एक्सरसाइज आप यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग मैं अपने बहुत से स्टूडेंट्स को करवाती हूँ। आपको इस पेंसिल को रखना है अपने लिप्स के बीच में, दांतों के बीच ऐसे, और फिर आपने बोलना है। जैसे मेरे को अगर बोलना है माय नेम इज रीटा गंगवानी, तो पेंसिल रख के अगर मैं बोलूंगी तो हर एक शब्द में गैप आएगा। देखिए, माय नेम इज रीटा गंगवानी। तो आप जब जोर देंगे, शब्द को जोर देंगे, तो इस पेंसिल की वजह से जोर लगने से गैप भी आएगा और वर्ड्स भी क्लियर आएंगे। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। ये जो 4-5 चीजें मैंने बताई हैं, धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस करेंगे, जोर से बोल के करेंगे तो आपके डिक्शन में बहुत फर्क पड़ेगा। This is really interesting. These are small exercises and it can actually make a difference. It can make a difference. Importance of positive mindset and how it does it help to achieve the life. Okay, what is the importance of positive mindset? Okay. अब देखिए, सपोज मैं आपको कहती हूँ कि आज शाम को मेरे घर में पार्टी है एंड यू हैव टू कम, और आपको पता है एनिवर्सरी है या बर्थडे है, वो सब लिखा हुआ है। अब आपने कार्ड देखा, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा? ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही ख्याल आएगा कि शाम को मेरे को जाना है, मैं क्या पहन के जाऊं। और जैसे ये थॉट आएगा कि क्या पहन के जाऊं, आपका माइंड इमीडिएटली आपको आपके कबर्ड में ले जाएगा और आप एक ड्रेस ढूंढेंगे। अच्छा, ये ड्रेस साड़ी पहनूंगी, ये झुमका पहनूंगी, ये, और आप एक तस्वीर बनाते हैं अपने दिमाग में कि ऐसे जाऊंगी, ऐसे बाल बनाऊंगी, ऐसे ये करूंगी, एक तस्वीर बना देते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हुआ? इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि ह्यूमन ब्रेन कन्वर्ट्स एवरी थॉट इनटू पिक्चर्स। हम जो भी सोचते हैं ना, वो शब्दों में नहीं सोचते, तस्वीरों में सोचते हैं। So every thought is converted into pictures. अगर मैं आपको बोलूं कि शाम को मुझे फोन कर देना, तो आप THUNE नहीं सोचोगे, आपके सामने मोबाइल की फोटो आएगी कि मोबाइल करना है, फोन करना है, मोबाइल में। So every thought is converted into pictures. और जो पिक्चर्स हम इमेजिन करते हैं, उस पिक्चर को फिर हम रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। So if my mind says ये नहीं हो सकता, ये इंसान बड़ा बुरा है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, when you start creating these negative messages in your brain starts converting it into picture, और वो एक रील बन जाती है। और जब आप कुछ पॉजिटिव करने के लिए जाते हैं तो वो रील चलने लगती है दिमाग में, और आप पॉजिटिव करना चाहते भी हैं तो भी वो रील चलेगी और आप नहीं कर पाएंगे। So it's extremely important कि मैं अपने ब्रेन को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव रील दूं, ताकि जैसे मैंने बताया था, जो मैं उसको थॉट दूंगी, जो रील दूंगी, वही एक्शंस मेरी बॉडी मुझे देगी। सो व्हेन यू थिंक पॉजिटिव, यू लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। लाइफ इज मेड अप ऑफ ड्यूअलिटी। अगर कहते हैं, अगर नरक है, स्वर्ग है, गरीब है, अमीर है, रात है, दिन है, काला है, सफेद है, गरीब के अमीर के लिए बादाम है तो गरीब के लिए उसमें मूंगफली है। सो देयर इज ड्यूअलिटी इन लाइफ। एक तरफ अच्छाई तो एक तरफ बुराई होती है। वी हैव टू लर्न टू लिव इन दैट ड्यूअलिटी। मेरे को
उस ड्युअलिटी में रहना है। और जब मुझे पता है कि नेगेटिव चीज मुझे नुकसान पहुंचाएगी और पॉजिटिव चीज मुझे अच्छा रखेगी, तो जस्ट थिंक अच्छा, जस्ट लिव विद दैट पॉजिटिव माइंडसेट एंड लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। क्योंकि लाइफ इज लाइक अ व्हील, लाइफ इज लाइक अ व्हील। अगर बुरे दिन आ रहे हैं ना तो अच्छे भी आएंगे, अच्छे हैं तो बुरे भी आएंगे। सो लाइफ इज लाइक अ व्हील। सो जब बुरे दिन आ रहे होते हैं, ऑलवेज थिंक दिस टू शैल पास, अच्छे भी आ जाएंगे। अच्छे आ रहे हैं तो बी प्रिपेयर्ड कि भी बुरा भी आ सकता है, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। सो दैट यू लर्न टू लिव, यू लर्न टू स्विम इन द लाइफ इन अ वेरी वेरी प्रिपेयर्ड वे। आप प्रिपेयर्ड रहते हैं, अच्छे में भी बुरे में भी, नथिंग अफेक्ट्स यू। कहते हैं ना, अ पर्सन हु इज मेंटली स्टेबल, उसको ना दुख में दुख होता है ना सुख में खुशी। वो लाइफ को स्ट्रेट लाइन के हिसाब से देखते हैं। सो जस्ट बी लाइक दैट पर्सन कि इतने दुखी भी ना हो जाओ कि नीचे गिर जाओ और इतने खुश भी ना हो जाओ कि हवा में चले जाओ। यू शुड फाइंड अ मिड वे, एंड दैट इज व्हाट इज द रियलिटी। जितना आप अपने को पॉजिटिव रखेंगे उतना खुश रहेंगे। उसके लिए सबसे पहली चीज, सुबह सुबह उठते ही मेहरबानी करके अपने मोबाइल को मत दे। मुझे याद है हम छोटे होते थे तो हम जगह ढूंढते थे कहाँ चांदनी रात चांद गिरेगा मेरे ऊपर, मैं ऐसी जगह सोऊं, यू नो वी यूज्ड टू फाइंड दैट प्लेस। अब हम ढूंढते हैं कहाँ चार्जर मेरा लग जाए तो मैं वहां सोऊं। सुबह उठते ही हम लोग ऐसे करके भगवान को याद करते थे। अब सुबह उठते ही पहले आंख भी नहीं खुली, मोबाइल उठा के देखते हैं। एंड यू नेवर नो, उसमें पहला व्हाट्सएप देखा और उसमें ऐसी चीज लिखी है जिसने सुबह सुबह इतना नेगेटिव कर दिया आपको। दिन की शुरुआत ही नेगेटिव तो सारा दिन नेगेटिव। तो अपनी दिन की शुरुआत ही अगर अच्छी से करोगे तो दिन भी अच्छा गुजरेगा। और रात को सोने से पहले डोंट टेक दैट, जो भी बुरा हुआ है दिन में उसको अपने साथ लेके मत जाओ। जस्ट क्लोज योर आईज एंड ड्रॉप इट, उसको डस्टबिन समझ के डाल दो, फेंक दो। जो हुआ सो हुआ, आज कल नया दिन है, कल की नई तरीके से सोचेंगे। So this is how you live, and you get up. I always say, people say, "Ma'am, I am a senior citizen." लोग कहते हैं आप लगते नहीं हो। ऐसे तो वो इसलिए नहीं लगती because I take B positive capsule early in the morning. B positive capsule. यानी कि मैं ये सुबह सुबह बैठ के WhatsApp देखना ये वो, I don't do that. I simply wake up, I stretch myself, stand out, पर्दे वर्दे खोल के कुछ गहरी सांसें ली, you know, कुछ अच्छा म्यूजिक मंत्र कुछ चलाया, you know, so I start my day in a positive way. फिर दिन में ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही होता है, बुरी चीजें भी आती है, but then I have the strength to face that, क्योंकि मेरा दिन अच्छे से, शुरुआत अच्छी से हुई। और सोने के पहले I just forgive and forget. जो हुआ सो हुआ, it's okay. I'm not carrying this लड़ाई, I'm not carrying this thought with me till tomorrow. मेरे से गलती हुई है, I'll pick up the phone or I will send a message, I'm extremely sorry, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, and I carry the next day, क्योंकि पता नहीं है कल हो ना हो, and I don't want to die with regrets. मैं नहीं चाहती मैं जाऊं और ये बुरी चीजें अपने साथ लेके जाऊं। I don't want people बाद में सोचे कितनी बुरी थी। So I live in the moment. अभी मैं जियो and हल्के होके जियो, don't carry that big gut. In fact, ma'am, I have read somewhere that happiness and sorrow, these all are state of mind only, which is in our control. Very much in control, क्योंकि क्या होता है, हम लोग बहुत से लोग हैप्पीनेस को बाहर ढूंढते हैं। भाई इस दुकान के बाहर लिखा हुआ है हैप्पीनेस इज सोल्ड हियर। आप अंदर गए, ड्रिंक की दुकान थी, आप आए, आपने ड्रिंक पी के जी मैं हैप्पी हो जाऊंगा, हैप्पी हुए, फिर आधे घंटे बाद फिर वहीं पहुंच गया, बोले ये तो दुकान वाला फ्रॉड था, उसने मेरे को बोला हैप्पीनेस बेच रहा है, ये तो काम की नहीं थी। कल दूसरी दुकान में गए, हैप्पीनेस सोल्ड हियर, वहां से आए, सिगरेट ले आए, पी, बड़ी अच्छी लगी, जैसी वो उतरी, अरे हैप्पीनेस इज नॉट, हैप्पीनेस बाहर से मिलेगी ही नहीं, किसी दुकान पे नहीं मिलेगी। हैप्पीनेस आपको अपने अंदर बनानी पड़ेगी, फैक्ट्री आपके अंदर है, खुद ही बनानी पड़ेगी। और अंदर से खुश हो तो नेचुरली बाहर भी खुश रहोगे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और खुश रहने का एक ही तरीका है, अभी में जियो। पास्ट को मत खींचो अपने साथ, फ्यूचर का पता है नहीं क्या होना है कल, प्लानिंग करो ठीक है, लेकिन डोंट गेट ऑब्सेस्ड कि क्या होगा। और पास्ट को मैं बदल सकती नहीं, सो देयर इज नो पॉइंट मैं उसको आज लेके आऊं। तो प्रेजेंट को प्रेजेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो गिफ्ट है। अभी भी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, थोड़ी देर में ये पास्ट हो जाएगा। सो ये हाथ से निकलता जा रहा है, एक एक सेकंड निकलता जा रहा है,
इसमें जीना सीखिए, इस मोमेंट को एंजॉय करना सीखिए। Yes, You know, try लोग to कहते take the कि maximum out of it. हाँ, लोग कहते हैं मैम कहना आपके लिए बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी इज फुल ऑफ फ्लावर्स। मेरी जिंदगी में भी कांटे हैं, मेरी जिंदगी में भी गहराइयां हैं, चढ़ाइयां हैं, बट दिस इज हाउ आई गो अप एंड डाउन कि मुझे वो इफेक्ट ना करे। आई हैव जस्ट लर्नड इट, आई हैव डेवलप्ड दैट स्किल। ये आप स्किल है जिसको आप डेवलप कर सकते हैं। Right. सो इट्स अ लर्निंग, आपको सिर्फ अपने को डेवलप करना है, दैट्स ऑल। Ma'am, what are your 5 mantras of success in life? 5 mantras of success in life. Okay. पहला तो यही, be in the moment. मेरे जिंदगी जीने का एक असूल है जिसको मैं कहती हूँ I will cross the bridge when I get to it. यानी कि जब मैं उस ब्रिज पे पहुंचूंगी तब सोचूंगी। तो ये जो मैं सोच रही हूँ कल ये होगा, वो होगा, फलान होगा, आई डोंट नो होगा, कल होगा भी कि नहीं होगा। सो आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई गेट टू इट। और जब मैं उस जगह पहुंचती हूँ, उस मोमेंट पे पहुंचती हूँ, तो मैं रियलाइज करती हूँ कि ये तो सब स्मूथ हो रहा है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा जो मैंने सोचा था। सो जिंदगी का पहला मंत्र यही है कि लिव इन द मोमेंट, क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू गेट टू इट। दूसरा मंत्र है दैट लाइफ कीप्स चेंजिंग। लाइफ कभी कांस्टेंट नहीं रहती। लाइफ का सबसे बड़ा असूल है कि लाइफ कीप्स चेंजिंग। मैंने पहले भी आपसे बताया था, लाइफ इज लाइक अ व्हील, अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा। सो व्हेन द थिंग्स, रात अंधियारी है, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, जस्ट रिमेम्बर दिस टू शैल पास। ये भी गुजर जाएगी और गुजरेगी, आप उसको रोक नहीं सकते, वो गुजरेगी, बिकॉज लाइफ इज ऑलवेज चेंजिंग। आज नहीं हुआ कल जरूर होगा, मेरा टाइम आएगा। सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट। द थर्ड लाइफ मंत्र इज दैट हैव पेशेंस। जिंदगी में पेशेंस बहुत जरूरी है। नो, देर है अंधेर नहीं है जिंदगी में चीजें होने में। चीजें होती हैं, बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो लुढ़कता फुड़कता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे चलता है, फिर बड़ा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, शादी होती है, फिर बूढ़ा होता है। ऐसा नहीं होता कि पैदा होते ही कॉलेज चला गया, पैदा होते ही शादी होगी, नहीं, इट टेक्स टाइम। जिंदगी में थिंग्स हैपन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जिंदगी में पेशेंस रखें। चौथी चीज जो मैं कहूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। कभी भी अपने को किसी से भी कंपेयर ना करें। हर एक इंसान डिफरेंट है, हर एक की सोच डिफरेंट है, हर एक का तरीका डिफरेंट है। जैसे 5 उंगलियां अलग है, सबका अलग अलग काम है, वैसे ही आपको जिंदगी में कभी अपना ट्विन नहीं है, जुड़वा नहीं दिखेगा। जुड़वा भी होंगे, ट्विन्स भी होंगे, तो भी एक से नहीं होते, उनके भी नेचर्स अलग अलग होते हैं। सो जब दुनिया में आपके जैसा कोई है ही नहीं, इसका एक ही मतलब है that you are a designer piece God has created. आप एक डिजाइनर पीस हैं जो भगवान ने बनाए हैं। तो live your own designer life. कट कॉपी पेस्ट मत करो किसी की जिंदगी, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। So do not compare yourself to anyone. और लास्ट आई थिंक 5वां मंत्र मेरा रहेगा कि छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी आए ना, ग्रैब इट। छोटे से ही शुरुआत होती है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। यू नो, जो रास्ता साफ करने वाला होता है वो उसी को आता है वो उसके रास्ता कैसे साफ करे। आप कितनी कोशिश कर लो, आप वैसा नहीं साफ कर पाएंगे। एक मैकेनिक को ही पता है, मुझे एक कहानी से याद आई कि एक अरब था, यू नो, उसके पास एक रोल्स रॉयस थी और वो उस रोल्स रॉयस को डेजर्ट में चला रहा था और बड़ा खुश। अचानक से गाड़ी रुक गई, इतनी धूप और गाड़ी रुक गई। नीचे उतरा, उसने बोनट खोला। अब बोनट खोलने के लिए उतरा नीचे, अब बोनट कहाँ है? आगे से खोला तो अंदर बोनट में वो इंजन ही नहीं है। इंजन नहीं है, गाड़ी कैसे चल रही है भाई? उसको पता ही नहीं था कि भाई उसका इंजन कहाँ है। रोल्स रॉयस का इंजन पीछे होता है, उसे पता नहीं था। दूर देख रहा है, ढूंढ रहा है कि भाई कोई मेरी मदद कर दे। दूर एक ऊंट पे एक आदमी जा रहा था, उसको हाथ देके बुलाया, वो बंदा आया, उसने बोनट खोला, इंजन देखा और फिर उसके बाद यूं ऐसे देखा उसने बंदे ने, और एक पत्थर पड़ा था, उसको उठा के जोर से उसने इंजन पे मारा उस बंदे ने।
और जैसे इंजन पे मारा, उसको बोला अब चलाओ गाड़ी, देखो चलती है, उसने घुमाई और चल पड़ी। तो बड़ा खुश हो गया कि जी क्या। तो वो नीचे उतरा, उससे पूछा कितने पैसे हुए, तो उस आदमी ने कहा कि 1 लाख, उसने कहा 4,040 रुपए। तो उसने कहा 4,040 रुपए किस बात के, तुमने तो एक पत्थर ही तो मारा था। तो उसने कहा 40 रुपए पत्थर मारने के और 4,000 इस चीज के कि पत्थर मारना कहाँ है, क्योंकि उसे ही पता था कि कहाँ पत्थर लगेगा तो गाड़ी चलेगी। तो कहने का मतलब ये कि हर एक काम अपने में एक स्किल है। कोई काम छोटा, कोई काम बड़ा नहीं होता। इसलिए जिंदगी में कोई भी छोटा काम करने से कभी मत कतराओ। इवन व्हेन आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को देखते हो, बच्चे आके मुझे कहते हैं मैम मैंने बड़े से 5 स्टार होटल में मेरे को इंटर्नशिप मिली है, पर पहले दिन ही उन्होंने मुझे नीचे बेसमेंट में बिठा के प्याज की बोरी दे दी काटने के लिए, मैंने इसलिए थोड़ी जॉब करी है, मैं इसलिए थोड़ी 5 स्टार में। अरे मैंने कहा वहां से शुरुआत होगी, तब जाके आगे स्टेमिना बनता है बच्चों का। मैं आर्मी में थी, हमको पहले दिन जब हम गए थे तो हमसे फ्लोर साफ करवाते थे, हमसे विंडोज साफ करवाते थे। तो क्या हम ऑफिसर नहीं बने? लेकिन हम इतने काबिल हो गए छोटी छोटी चीजें करने से कि हमको हर चीज का ज्ञान हो गया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि छोटी से छोटी चीज भी अगर आपको करने के लिए मिले, करो, सीखो। कोई भी एजुकेशन जो है वेस्ट नहीं जाती। सो दीज आर माय 5 स्किल्स जो जिंदगी में आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। Thank you so much, Rita ma'am. It's been quite a learning session for all of us. Thank you so much for giving us time for this session. Thank you so much.